for joining us with all of those updates. Meanwhile, 3 Maoists operating in Chhattisgarh have surrendered. On this, Telangana DGP Shivthar Reddy says, and I quote, "Today we had a surrender of 3 Maoists from the state committee ranks. Their area of cooperation was in Chhattisgarh, particularly in the Karanja part of Chhattisgarh. Each of them receives Rs 20 lakh as a reward, which has been immediately paid to them in the form of a check." Let's in fact listen in. Today we had surrenders of 3 state committee rank Maoists. Basically their area of operation was in Chhattisgarh, particularly the Dandakaranya part of Chhattisgarh. And we have Kunkati Venkataya alias Ramesh alias Vikas, and then Mogilcharla Venkatraju alias Raju alias Chandu alias CNM Chandu, and his wife Todam Ganga alias Gangava alias Soni. They are all the state committee rank leaders from CPI Maoist. Most of their operational area was in Chhattisgarh, that is South Bastar area, particularly Dandakaranya area. Yeah, and each one of them carries 20 lakh rupees as a reward, and given to them in the form of a check. Let's now take a look at some more breaking news that is coming in. The Gurugram police filed a charge sheet in the murder case of former tennis player Radhika Yadav, naming her father Deepak Yadav as the accused. A senior police officer has now stated the police interviewed around 35 witnesses during their investigation, and the next hearing is set for October 17th. Now, following a 3-month investigation, Sector 56 police filed a charge sheet of over 400 pages in the district court on Wednesday. In the charge sheet, the police stated that wary of taunts from people, the accused killed his daughter Radhika to save his honor. Meanwhile, Deepak Yadav's lawyer, Advocate Shyambir Singh, said that he has not yet received a copy of the charge sheet from the court and will only be able to comment on the matter after receiving the documents. Gulshan Grover is joining us for more details. Gulshan, take us through this charge sheet that has now been filed after 3 months in this major murder case from Gurugram, where the tennis player had of course been killed by her father. Take us through the details of the charge sheet as well, and what are the police stating as the reason behind this murder? देखिए, बिल्कुल अब गुड़गांव पुलिस ने टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड वाले मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और ये 420 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बताया गया है कि पिता और बेटी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था और दीपक यादव, जो कि राधिका यादव के पिता हैं, उन्होंने कई बार राधिका को घर से बाहर जाने और कोचिंग देने से भी मना किया था, लेकिन राधिका नहीं मानी और इस बीच राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये पूरा मामला 10 जुलाई 2025 का है और जो कि गुड़गांव के सेक्टर 57 के अपने घर में राधिका यादव और उनके पिता दीपक यादव के बीच सुबह एक बहस होती है आपस में, और उसके बाद दीपक यादव, उनके पिता, उनको 4 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। उस समय राधिका किचन में खाना बना रही होती है। घटना के तुरंत बाद जो पुलिस है वो दीपक यादव के घर पहुंचती है और दीपक उस समय घर पर ही मौजूद होता है, उससे घर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने इस दौरान हत्या में इस्तेमाल एक लाइसेंसी जो बंदूक है दीपक की, उसको भी जब्त किया था और इसे सबूत के तौर पर भी अब कोर्ट में पेश किया गया है। चार्जशीट का इंतजार था और आखिरकार चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। हालांकि इस दौरान जो दीपक यादव के वकील है श्यामवीर, उनका ये कहना है कि अभी जो चार्जशीट है उनके पास अभी उसकी कॉपी नहीं पहुंची है, लेकिन अगली जो सुनवाई है वो 17 अक्टूबर को होनी है और उसी के बाद जब चार्जशीट मिलेगी तो उसके बाद ये कोई टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा मामला था कि एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि वो अकेडमी चलाती थी, एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, टेनिस प्लेयर थी, लेकिन कंधे में उसके चोट होने के कारण उसने टेनिस छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उसने एक अपना एकेडमी खोला। एकेडमी के अंदर कोर्ट में बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी ताकि आगे फ्यूचर में और भी बच्चे टेनिस खेल सके और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके। लेकिन इस दौरान पिता को ये रास नहीं था। हालांकि पिता का इस दौरान ये भी कहना था, जो पुलिस को उन्होंने बताया, कि
समाज के ताने बाने से वो तंग आ चुके थे कि ऐसा उन्हें कहा जाता था कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, और इसी बात पर वो लगातार अपनी बेटी को इस एकेडमी को बंद करने के लिए कहता था। लेकिन राधिका चाहती थी कि उसकी तरह और भी बच्चे जो है राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर पर टेनिस खेलें, इसलिए उसने नहीं मानी अपने पिता की बात, और आखिरकार पिता को मजबूरन जो है अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतारना पड़ा और अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। अब चार्जशीट में ये जरूर है कि जो चार्जशीट दाखिल की है, इस चार्जशीट के अंदर दीपक यादव जो राधिका यादव के पिता हैं उन्हीं को ही इसमें आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी तक और घर का कोई भी सदस्य जो है इस दौरान चार्जशीट में उसको कोई आरोपी नहीं बनाया है, क्योंकि साफ तौर से दीपक ने ये कहा है कि उसी ने ही अपनी बेटी की हत्या की है, और हत्या की जो वजह है वो केवल एक वजह बताई है कि मान सम्मान के लिए उसने अपनी बेटी का मर्डर किया है। यानी समाज का जो मान सम्मान है वो उसे नहीं मिल रहा था, ये कहा जा रहा था कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, इसलिए उसने अपने मान सम्मान में अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट जो है आगे किस तरह की कार्रवाई करता है, आगे किस तरह की सजा का ऐलान करता है, फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन इस समय जो दीपक यादव आरोपी है, जो राधिका यादव के पिता हैं, वो फिलहाल गुड़गांव के भौंडसी जेल में बंद है, और अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आता है, चार्जशीट में किस तरह की बहस जो आरोपी दीपक है उसके वकील यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, ये अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जब ये पूरी घटना हुई थी 10 जुलाई को, उस समय पूरे देश के अंदर एक जरूर इस तरह का माहौल था कि क्या एक पिता अपनी बेटी को कैसे मौत के घाट उतार सकता है, केवल इतनी सी बात पर कि वो एकेडमी चलाती है, वो खुद अपना कमाई करती है, अपने हाथ के हुनर को दूसरों को सिखाना चाहती है, और इसी बात से पिता अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार देता है। तो फिलहाल अब इस चार्जशीट दाखिल होने के बाद अगली 17 अक्टूबर को क्या कुछ सुनवाई होती है ये देखने वाली है, और सबकी नजरें इस पर टिकी भी हुई है। जी बिल्कुल गुलशन, थैंक यू so much for joining us with all of those details. Now, Prime Minister